So, good evening, everybody. I am supposed to talk about early signs of liver disease. So, myself, Dr. Manoj Kumar, I am Director of Gastroenterology and Endoscopy at Fortis Hospital, Basant Kunj. I deal with all these liver cases. So, let me first tell you what is liver. Liver is an organ, a very big organ situated in the right side of our abdomen below the diaphragm. That means uppermost part of the right side of the abdomen beneath the diaphragm. So, what does it do? What are the functions of this liver? It carries very important functions in the body. Whatever we eat is digested in the GI tract, and then the food products are broken down into minor units of whether it is fat is converted to fatty acids and glycerol, carbohydrates, they are converted into glucose, fructose, and the smaller molecules. Similarly, proteins, so these protein, carbohydrate, or fat, they are not useful for human body. So what they do, our GI tract digest these things into smaller molecules, and from these smaller molecules, liver produces those proteins, fats, or carbohydrate which are useful our body for our body. लकड़ी को काट करके हम कुर्सी बना देते हैं, चेयर बनाते हैं. सिर्फ लकड़ी पे तो बैठ नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते हैं. So one part of the function of the liver is it carries out synthetic functions. It forms from glucose to glycogen, which is stored in liver itself. It forms fatty acids, which are stored in different parts of the body, fats. It similarly produces proteins, like proteins which are useful in blood circulation, and so on and so forth. So if liver is damaged, then we will have deficiency of these important molecules which are synthesized by the liver. Now the second function is liver stores all these proteins, fats, and other things, including other things also like vitamins, iron, etc. So if liver damage is there is liver damage, so these components will not find a place to be stored. सो उस समय क्या होगा, वो बॉडी जो है उसको निकाल नहीं पाएगा, उस बॉडी उसको रख नहीं पाएगा, स्टोर नहीं कर पाएगा. तीसरा फंक्शन होता है लिवर का कि ये जो टॉक्सिक मटेरियल्स बॉडी में बनते हैं, हमारा इंटेस्टीन है सब, दिस इज ए कॉन्स्टेंटली रनिंग मशीन. It produces, as any machine, some toxic materials. So these toxic material have to be excreted out of the body. So ये जो काम है फिर लिवर का, इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को लिवर के से बाहर निकालना, जीआई ट्रैक्ट में देना, एंड फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट इट गोज डाउन थ्रू आवर स्टूल. सो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग होता है एक बाइल. अगर बाइल का रंग पीला होता है, अगर बाइल स्टूल में नहीं जाएगा तो एक्सक्रीट नहीं होएगा तो स्टूल का कलर सफेद हो जाएगा, जो कि कुछ मेडिकल कंडीशंस होता है, दैट मे बी we'll be covering later on. So according to these functions, you can now understand yourself what could be the signs of liver damage. पहली बात and to be noted is कई बार 50-60% लिवर डैमेज हो जाता है, लेकिन इंसान को कोई तकलीफ नहीं होता है. तकलीफ क्या होता है? कमजोरी होती है, जल्दी थक जाता है, फैटिगेबिलिटी होती है. सो आप अगर ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी के पास जो कि मीन्स जनरल प्रैक्टिशनर टाइप के हैं, वो विटामिन दे देगा, टॉनिक दे देगा. सो इट इज important to catch liver disease at this early point, and so that जो डिजीज प्रोसेस जो है उसको स्टॉप कर दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल, एल्बुमिन नहीं बन रहा है बॉडी में. एल्बुमिन का काम है कि बॉडी से वाटर कलेक्ट करके, पैर से सब जगह से वाटर कलेक्ट करके यूरिन में डिस्चार्ज करवाना. और एल्बुमिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर.
सो इफ लिवर इज नॉट प्रोड्यूसिंग एल्बुमिन, क्या होगा? इंसान को पैर में सूजन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में पीडल इडीमा बोलते हैं। पानी को निकाल नहीं पा रहा तो उसको कहीं भी स्वेलिंग हो सकता, फेस में स्वेलिंग हो सकता, पेट में पानी कलेक्ट हो जाता, जिसको हम लोग एसाइटिस कहते हैं। बहुत कॉमन बीमारी है जो कि आप लोग सुनते हैं, कहते हैं उसके पेट में पानी हो गया जी, उसके लीवर में पानी हो गया जी। तो ये दो साइंस इसलिए होते हैं बिकॉज एल्बुमिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा बॉडी। सो अगर पेशेंट पैर में स्वेलिंग लेके आएगा तो मैं तो हमारा दिमाग अलर्ट हो जाएगा कि भाई ये लिवर डिजीज है इसको। लेकिन अर्ली जो डॉक्टर जनरल प्रैक्टिस करते हैं वो उतना ज्यादा नहीं अटेंटिव अगर हैं तो वो नहीं पहचान पाएंगे इसको। कितने बार हम लोगों ने देखा लिवर डिजीज लेके आ रहा, पूछा पैर में स्वेलिंग है जी, हाँ है सही, तो 5 साल से हो रहा है। सो अगर 5 साल पहले मेरे पास वो पेशेंट आ गया होता तो हम पकड़ लेते उसको कि लिवर में डैमेज शुरू हो गया है इसको, और उस समय अगर दवाई ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया होता तो शायद उसका लिवर बच सकता था। सिमिलरली ऐसे पेशेंट को जो ब्लड में कोगुलेशन होता है, ब्लड में जहां भी कट जाए तो वहां क्या होता है, ब्लड अपने आप रुक जाएगा, अनलेस कि आप मेन आर्टरी को काट दें, कहीं जगह डैमेज हो जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो गया तो अपने आप रुक जाता है उसको। तो कोगुलेशन फैक्टर इसको कहते हैं। कोगुलेशन फैक्टर वहां आते हैं और वो उसको प्लग कर देते हैं जहां से ब्लीडिंग हो रही है। तो वो कोगुलेशन फैक्टर्स का जो सिंथेसिस एक्टिवेशन इज डन बाय लिवर। सो लिवर में डिजीज नहीं है तो आप उस ऐसे मरीज को देखिएगा, कट गया तो फिर उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही, दांत निकलवाया तो उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो कहते हैं भैया क्यों ऐसा हो गया। देन वी इन्वेस्टिगेट दोज पेशेंट एंड फाइंड दैट patient is having actually liver disease which was not diagnosed earlier. तो ये एक साइन सिम्टम है लिवर का। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आता है जिसको कि आदमी उसको भी इग्नोर करते हैं आदमी, कि लिवर में अगर कोई डिजीज है, अगर पेशेंट को जॉन्डिस है तो ऑलमोस्ट 99% और यू कैन से 100% इज बिकॉज ऑफ सम डिजीज इन लिवर। ब्लड का ज्यादा ब्रेक डाउन होता है कुछ लोगों में, जिसको हिमोलिटिक एनीमिया कहते हैं, उसमें भी जॉन्डिस होता है, बट अगेन एक्सक्रीशन पार्ट इज करीड लिवर ओनली, सो लिवर इज इन्वॉल्व देयर आल्सो, तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। अब किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो गया तो क्या करेंगे आप पहले देसी दवाई खाएंगे, माला पहनेंगे, झड़वाएंगे जॉन्डिस को। दिस इज व्हाट वी विल डू। इफ पेशेंट डेवलप्स जॉन्डिस then it can be a sign of cirrhosis of liver, which is end stage of the liver disease. So if patient has jaundice, it has got to be some serious illness. So please understand this कि अगर आप में, आपके सोसाइटी में, आपके परिवार में, या अगर कोई डॉक्टर सुन रहे हैं तो उसमें प्लीज आप डॉक्टर का से चेक करवाएं कि ये लिवर है क्या, लिवर की जॉन्डिस क्यों हुआ। जॉन्डिस का इलाज तो ऐसे भी बहुत सारे कंडीशन में हम लोग भी नहीं करते हैं, वी गिव देम पेशेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, बट देन वी नीड टू नो व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस जॉन्डिस, वेयर इज द जॉन्डिस कमिंग फ्रॉम। जॉन्डिस पेशेंट का हो सकता है लिवर के पहले कोई बीमारी हो, लिवर में बीमारी हो, लिवर के बाद की बीमारी हो। सपोजिंग कि पेशेंट को लिवर बिलिरुबिन बनता कहां से, ब्लड के प्रोडक्ट से। तो अगर पेशेंट का ब्लड किसी भी बहुत सारी बीमारियों में जल्दी टूटने लगे तो क्या होगा। नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ लिवर इज 120 डेज। 100 जो नया आज ब्लड सेल बन रहा है, रेड ब्लड सेल, वो 120 डेज तक अपना काम करेगा, उसके बाद ये बूढ़ा हो जाता है, टूट जाता है। तो अगर ये अर्ली टूटने लगे, 80 डेज में टूटने लगे, 50 दिन में टूटने लगे, तो क्या होगा, ज्यादा बिलिरुबिन होगा, इतना बिलिरुबिन बन जाएगा कि लिवर उसको निकाल ही नहीं पा रहा है। वो पंप कर रहा है उसको, जितनी हाईएस्ट कैपेसिटी में है बिलिरुबिन को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहा है, तो क्या होगा, पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा। और अगर लिवर में खुद बीमारी हो गया हो तो वो तो कर ही नहीं पाएगा, उसको पंपिंग का जो प्रोसेस है उसको कुछ प्रोसेस होता है, कंजुगेट, डीकंजुगेट, कंजुगेशन टू कंजुगेट करना, कंजुगेट करके उसको निकालना है। तो अगर वो कर ही नहीं पा रहा है तो फिर भी पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा। और मान लिया कि बन गया बिलिरुबिन और आगे एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा हो, जैसे वो बाइल डक्ट में आ गया, गॉल ब्लैडर में आ गया, लेकिन उससे नीचे नहीं जा रहा हो, तो भी जॉन्डिस हो जाएगा पेशेंट को। और ये कैसे कंडीशन में होएगा, जबकि एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम में, जो बाइल, जब लीवर से बाइल निकलता है
तो वो गॉल ब्लैडर में जाता है, बिलियरी ट्री में जाता है और वहां से इंटेस्टिन में आता है, डिओडनम, सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडनम में आता है। तो अगर यहाँ रुकावट हो जाए, रुकावट कैसे हो सकता है? कैंसर में होता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो हो जाता है। तो किसी तरह बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो फिर पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा। सो अगर ऐसा भी कंडीशन हो रहा हो कि इसमें कैंसर हो रहा है, तो दिस कैन बी द अर्ली साइन ऑफ कैंसर ऑफ बाइल डक्ट, कैंसर ऑफ पैनक्रियाज, कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर एंड कैंसर ऑफ बाइल डक्ट इटसेल्फ। सो अगर ऐसा हो और हमें जल्दी पता चल जाए, तो आप जानते हैं कि कोई किसी भी कैंसर का अगर जल्दी डिटेक्शन हो जाएगा तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर वही पेशेंट आता है हमारे पास एडवांस डिजीज में, उसका मेटास्टेसिस हो जाता है लंग्स में, अंदर लिवर में और कहीं भी, तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। पेशेंट गोज बियॉन्ड द स्टेज ऑफ सर्जरी। फिर उसमें हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं, सेकाई करते हैं, कुछ कैंसर्स में, कुछ में कीमोथेरेपी देते हैं एंड ट्राई टू ब्रिंग टू operable stage, which in most of the cases I tell you is not possible. So एक जॉन्डिस पेशेंट को हुआ और आपने देखा कितनी बीमारियां का एक आप तो कहते हैं जॉन्डिस हो गया जी, झाड़ फूक वाले झाड़ फूक कर देते हैं, लेकिन जब एक जॉन्डिस का मरीज आता है हमारे पास, तो हमारे दिमाग में कितनी बीमारियां आती हैं? कम से कम 50 बीमारियां आती है और हमें उस 50 बीमारियों से निकालना पड़ता है कंक्लूजन कि इनको इस पर्टिकुलर पेशेंट को जॉन्डिस किस वजह से हो रहा है। सो प्लीज नेवर नेग्लेक्ट jaundice. If anybody develops jaundice, it must be investigated. So then vomiting, nausea, vomiting is another very early symptom of liver disease. कुछ जो पेशेंट का स्किन कलर, जॉन्डिस पता कैसे चलेगा आपको? कि पेशेंट की आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब पीला हो जाता है, और जो व्हाइट कलर के स्किन होते हैं उनका तो पूरा स्किन ही पीला दिखने लगता है। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है। इसके साथ साथ उनको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, भूख नहीं लगेगी, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, फैटिक तो होगा ही होगा, पहले पेल स्टूल होएगा। पेल स्टूल मतलब अगर जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है, बाइल इंटेस्टिन में जा ही नहीं रहा, तो क्या होगा? वो पीला रंग हो जाएगा। स्टूल तो कलर पीला होता है बिलिरुबिन की वजह से। अगर बिलिरुबिन नहीं जा रहा तो स्टूल सफेद हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं क्ले कलर्ड स्टूल। और ऐसे पेशेंट को स्किन में भी जो बिलिरुबिन जमा हो जाता है, पूरे बॉडी में जमा होता है, तो स्किन में भी जमा हो जाता है, तो उनको इचिंग होती है, खुजली होती है, इतनी खुजली होती है कि उनका जीना हराम हो जाता है। इनफैक्ट ऐसे पेशेंट को अगर कैंसर है तो कुछ और करें ना करें, हमें जॉन्डिस के लिए कुछ इलाज करना पड़ता है। हमें जो है ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम को इससे बाइल फ्लो प्रोड्यूस करना होता है, और उसके लिए हम लोग एंडोस्कोपी का सहारा लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निक को ERCP. ERCP is again a very specialized endoscopic procedure which we do over here routinely, and many people are doing it. पेन एब्डोमेन हो सकता है, लेकिन कुछ खास कंडीशन में। अगर पेशेंट को जॉन्डिस जो है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है, स्टोन की वजह से है, तो पेशेंट को पेन होगा। लेकिन अगर पेन नहीं है तो उसको पेनलेस जॉन्डिस होता है मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में, एक्सक्लूडिंग सम कंडीशंस लाइक पैनक्रियाटिक कैंसर और सम केसेस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर आल्सो. So I think now I have told you as much I can say in short span of time. If any of you has any question, you can very well ask me. So I think there is no question right now. They will probably listen to this in their leisure time. So thank you very much. And now I wrap up my presentation.